Okay, so last class we already discussed about counting sort, but we have, I think, still have some doubt, or I think not completed. Last coding is not completed. So start from beginning or start from the last end. The logic बताइए बस. Only last line, na? Okay. Simply once again I'll just repeat, then we'll go to the last. Uh, so first of all, counting sort, a sorting technique based on keys between a specific range, and it works by counting the number of objects having distinct key values. I think you don't know the concept of hashing. So actually here the concept of hashing, then doing some arithmetic to calculate the position of each object in the output sequence. So here one point I uh, told you, anyone can remember? That means difference from other sorting algorithm. What is the main difference of other sorting algorithm? So this is not about comparison. Yes, very good. This is the main point. Okay. So here, first point. Uh, so that means here we have taken 15 size of array and contain the values in the range of 0 to 9. Okay, and n equals to 15 and k equals to 10. Okay, so initially, that means initialize the value ci, that means here range of the values, so 0 to 9, 0 to 9, and initialize here. Okay, so first of all we'll take 15 values, and values range is 0 to 9. So that's why another array, that is c, and initialize to 0 0 0. After that we'll put the value. So first of all, one loop is there for I equals to 0, I less than k, I plus plus ci, that is here 0 0 0. Now next point. So next, so here how many ones are there? That means within the array a element, that means input element. So individual element, how many elements are there? So that thing count here. That means here C array. So suppose if you are taking any number, suppose 4. So how many times 4? वो कहाँ पे लिख रहे हैं ना, इन दिस एरे, सी एरे में. So anyone have any doubt in this code? In this code, if any one have any doubt, then I will explain. Otherwise, go to the main point. In this coding, anyone have any doubt? Anyone have any doubt in this line? No, sir. Okay, fine. So that's why, that means here we are getting, that means in this is the logic, and we are getting the values here. That means how many times 4, how many times 3, how many times 8. So just here we count the number of. Okay, fine. नेक्स्ट लाइन में क्या है? नेक्स्ट लाइन simply we add. So here this is the logic.
Ci equals to Ci plus Ci minus 1. Okay, so I think last class one question asked. So this thing I will explain this one. Suppose number one or one point is take a count array to store the count of each unique object, index and count. Okay. After that, we are getting modify the count array such that each element, this is this thing, this line you follow. So modify the count array such that each element at each index store the sum of previous count. That means if you check here, this line, just you check here. Suppose here written, we have written 5. Okay. So what is the meaning of 5? In this index, 5 and less than 5. How many numbers are there? Now 5. Suppose 6. Oh, sorry. Okay, sorry. In this line, the modified count array indicates the position of each object in the output sequence. Sorry, each object in the output sequence. That means suppose 0, 2, 4, 4. So here the position of the each object. So the modify count array indicates the position of each object in the output sequence. So 0, 2, 4, 4. So you are getting the position of the each object in the output sequence. And the last one is the output each object from the input sequence followed by the decreasing it by count by 1. This thing is left. So that point I will discuss here. So till now अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ पे okay. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 count, and these are the element. Okay. Now last one. तो इन दिस लाइन इसको अच्छा से समझना है कि सपोज अभी क्या क्या इसको सॉर्टेड करना है. अभी एक्चुअल में अभी तक सॉर्टिंग नहीं हुआ था, अब इसको सॉर्टिंग करना है. ठीक है, तो अब कैसे होगा ना, फॉर j equals to n minus 1, j is greater than equals to 0, j minus 9. So now suppose we are assuming j equals to 14. So j equals to 14. J equals to 14. So j equals to 14 means, first of all we'll calculate aj. aj means a14. इस लाइन को थोड़ा सा फॉलो अप करना है. दिस इज द लॉजिक. So j equals to 14 means a14. A14 means if you check a14 means 7. a14 means 7. a14 का वैल्यू कितना है 7. if you check the array, so a14 is 7. a14 is 7. Now CAJ, that means CAJ, AJ value is 7. So C7. Now you check what is the value of C7. Anyone can say this is the C array. This one is a C array. Now what is the value of C7? 11. 11. Very good. Fine. So C7 is 11. So 11 and logic is B CAJ minus 1.
C as a value is 11. So now C as a value is 11 minus 1. Minus 1. After that we are getting 10. So now in place of B10, because now if you calculate this one, so we are getting Hello, 7, 10. sir. Yes. So try to make your voice loud, sir. Okay. So now in this line, now is okay. Sir, your voice is okay, sir. Okay. So maybe some especially if your mobile problem. Network issue maybe, sir. Huh? Sir, maybe there is some network issue. Okay, no problem. Uh, so now, after that, this line, just you check this one, CAJ minus 1. So what is the value of CAJ minus 1? In place of CAJ, we can write 11. Yes, minus 1. After that means minus 1, that means now value is 10. Yes, so now value is 10. Okay, so in place of B10, because now one array is required, an array, which array? Now actually we store the value in sorted form. So that's why another array is required, and this is a B array. So control C, B array, another new array we are taking here, another array. Wait 2 minutes. So suppose यहाँ पे एक array लेते हैं, control C. Okay. So actually this array is now initialized, अभी कुछ नहीं यहाँ पे, 15 element is there. Okay, this one. So in place of B10, this was actually output. We'll getting here the output. So B array. So now B10. So B10 in place of B10, we can write AJ B10. So in place of B10, we'll write AJ. तो AJ का वैल्यू क्या था? AJ का वैल्यू क्या था? AJ means A14. AJ का वैल्यू क्या है? A14. थोड़ा सा देखिए कोडिंग को, थोड़ा सा, ये है लॉजिक। अभी हम लोग फाइनल आउटपुट जो है कहाँ पे स्टोर करने हैं ना, बी एरे में। ठीक है, बी एरे में हम लोग फाइनल एरे जो है उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जितना भी प्रोसेस हुआ, अब फाइनल जो एरे है बी एरे में स्टोर करेंगे। तो बी एरे में अभी कुछ नहीं है। नाउ इसके लिए जो लॉजिक है, क्या लॉजिक है ना, फॉर j इक्वल्स टू n माइनस 1, j इज ग्रेटर देन 0 and j minus minus. So I will explain also why we'll start from n minus 1. Okay, we'll start from the end. यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम लास्ट एलिमेंट से, जो एरे एलिमेंट है, दैट मीन्स इन दिस पोजिशन, स्टार्ट फ्रॉम 14. तो 14 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है ना, 7। वो 7 कहाँ पे एक्चुअल में वो किस पोजीशन में रहेगा? ठीक है, वही तो कर रहे हैं, उसी 7 एलिमेंट को उठा के कहाँ पे डालना है, यहाँ पे बी एरे में, और बी एरे में इन व्हिच पोजीशन में वो रखेंगे। दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं ना, इन प्लेस ऑफ B10, अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आफ्टर दैट, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू कितना आया, 10। यस, तो 10। सो दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ B10 के जगह पे क्या होगा, आप इस लॉजिक को देखिए, इसको B10 के जगह पे AJ का वैल्यू होगा। यस और नो, ये क्लियर हो रहा है, ये नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो फिर से बोलो। नहीं हो रहा सर।
Okay, okay, okay. Sir, one more time, sir. Huh? Yes, yes. I will not one time, 10 times I will explain. Okay. Just you try to understand. Our main objective, this is our input array. Okay. That means array elements are there. So 15 elements are there. Okay. Now final output will store in the B array. Yes. Now, so B array. So B array means we'll get the sorted form. So all elements will get in the sorted form. So now 7. So actually the input, now 7 is a 14 position, but actual position of 7, in which position 7 किस पोजीशन में होगा B10 में, तो B एरे में फाइनली वी स्टोर द वैल्यू इन अ B एरे। ठीक है, अब इसके लिए क्या लॉजिक दिया है कि B C A J minus 1 C A J minus 1। So first of all, we calculate what is the value of AJ. AJ, so AJ means A14. A14 means 7. Now CAJ minus 1. So CAJ, that means C7. C7. C7, that means 11 minus 1 equals to 10. So that means B10. अब B10 में हम क्या रख सकते हैं ना 7। तो B10 में 7। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि सी ए जे का वैल्यू सी ए जे माइनस 1। So CAJ, so now you check here, CAJ, that means C7, C7, तो C7 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डिक्रीज हो जाएगा। नाउ C7 का वैल्यू अभी क्या होगा, CAJ माइनस 1, CAJ माइनस 1, sir. 1, CAJ minus 1, that means now 10, this value is 10। तो ये अभी 1, अभी जब n j equals to 14, that means we will start from here gn minus 1। so that's why now 1, that is 1 time is complete होने के बाद अभी इसका वैल्यू हो गया 10, CAJ का वैल्यू हो गया 10 एंड ये जो है आपका B10 पोजीशन में 7 आया। यस, नाउ नेक्स्ट व्हेन j इक्वल्स टू नेक्स्ट वैल्यू इज डिक्रीज होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 13। यस, नाउ J13, Okay. J13 means J13, what is the value of J13? 9. Okay. 9, sir. So J13 value is 9. So that means here we can write A13. So A13 means यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है ना 9। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और वैसे क्लियर हो जाएगा। इसका 13 कोमा देखिए, कंफ्यूज नहीं आना है। तो A13, हेलो यस हेलो सर। यस, सर प्रोग्रामिंग सर इस तरह से पहले से लिखा हुआ के सर इस तरह से समझ में थोड़ा दिक्कत होता है सर। आप व्हाइट बोर्ड पे लेके और ड्राई रन करके समझाएंगे तो इजीली तो ये समझ में मैंने आएगा। एक्चुअली मैंने तो व्हाइट बोर्ड में ही किया हूँ बाबू, ये तो वर्ड में मैंने टाइप करके ही किया हूँ। मैं जो कर रहा हूँ आपका, तो 1 by 1 ही तो ऑलरेडी मैंने राइट किया था ना कल। लेकिन यस सर, बट इसमें सर ड्राई रन नहीं करते तो सर उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली आपका फिजिकल लेवल में अगर क्लास करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैंने तो कोशिश कर रहा हूँ वर्ड में आपका जैसे 1 by 1 टाइप करके ही तो किया। जैसे यहाँ पे जो कोडिंग है उसको तो मैंने व्हाइट बोर्ड एज ए व्हाइट बोर्ड ही टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे एज ए वर्ड। ओके सर। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब आपको जिस मतलब आपको कोशिश रहना, इसमें देखो समझ में नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन 10 टाइम, बट इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, हम तो खुद ही टाइप किए यहाँ पे इसको कोडिंग को टाइप किया ना, ठीक है, BCAJ माइनस 1। अब इसमें मैंने वैल्यू दे दे के तो दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। जैसे यहाँ पे CAJ, तो यहाँ पे देखो J इक्वल्स टू 13, तो J इक्वल्स टू 13, ये चेक हियर, J इक्वल्स टू 13 कहाँ पे वैल्यू है, J13 मीन 9। यहाँ पे कोई डाउट है?
ठीक है ना? हाँ सर। ओके, तो जस्ट इसको फॉलो कीजिए। अब जैसे मैंने इस कोडिंग को किस तरह से वैल्यू के साथ मैं रिलेट करके कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने आप खुद एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करना, ठीक है? तब आपको देखना पूरा क्लियर होगा। अभी मे बी यू आर कंफ्यूजिंग, तो इस कोडिंग के साथ जो वैल्यू ले लेके जो पुट कर रहा हूँ वैल्यू, उसको आप खुद एक बार एक्सप्लेन, मतलब खुद अपना एक एग्जाम्पल लेके, और मिल जाएगा आपको कोई भी एग्जाम्पल, और यू ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। ओके, सो देन आई थिंक विल गेट, ठीक है? तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी देखिए A13, तो इन प्लेस ऑफ A13 वी कैन राइट 9, A13, तो A13 का जगह पे वी कैन राइट 9। ओके, so that means A13 में कौन सा है ना, 9। एक्चुअल में नाउ आवर मेन ऑब्जेक्टिव 9 का एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है? तो 9 का एक्चुअल पोजीशन के लिए ये जो है लॉजिक, अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, A9, that means now we'll calculate CAJ minus 1, CAJ minus 1, so CAJ that means here CAJ that means A13, A13 मतलब 9, so 9 that means C9 minus 1, C9, so in place of C9, now you check here what is the value of C9। इसको थोड़ा जैसे मैंने अभी पूछा, तो आप इसको बताइए क्या होगा। जैसे अब इसको जो जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे सी, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोग को कि यहाँ पे C9, तो C9 का वैल्यू क्या होगा? C9, एनीवन? 15. यस, 15। कहाँ से ना, सी एरे है, तो सी एरे से हम लोग ये जो वैल्यू मिल रहा है 15, तो C9, दिस इज C9, तो C9 से 15, तो 15 माइनस 1, 15 माइनस 1, दैट मीन्स 14, दैट मीन्स हियर 14, तो B14 पोजीशन में ये 9 होगा, तो B14 पोजीशन में यहाँ पे 9 होगा। आप अगर जनरल व्यू से आप अगर देखेंगे, 9 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट है उसमें से देखो यहाँ पे 9 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो 9 का पोजीशन कहाँ पे हुआ ना, 14 पोजीशन में, ठीक है? और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, n j इक्वल्स टू n माइनस 1, j इक्वल्स टू n माइनस 1। क्यों? एक लॉजिक है इसमें कि जो एलिमेंट का पोजीशन सपोज 9 है, तो उसका पोजीशन 9, दैट मीन्स वो पहले, सपोज यहाँ पे एक 9 यहाँ पे है, दिस 9 इज हियर, एंड another 9 is in this position, यहाँ पे। यस, सो हम लोग बोलते हैं कि काउंटिंग सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट मीन्स व्हेन विल टेक द इनपुट, दैट मीन्स इनपुट में किसका पोजीशन पहले है, दिस 9 का, आफ्टर दैट ये 9 का है। यस, तो ये जो पोजीशन है वो मतलब स्टेबल होना चाहिए, दैट इज द लॉजिक। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग, दैट मीन्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, j इक्वल्स टू n माइनस 1। सो इसको अगर फॉलो करेंगे तो 9 का पोजीशन अभी कहाँ पे है ना, 14 है, ये 14 में है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट व्हेन विल गेट द नेक्स्ट 9, तो यहाँ पे जो 9 मिलेगा वो कहाँ पे होगा, 13 पोजीशन में। इसीलिए इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखना, लॉजिक यहाँ पे लगाएं, सी आई इक्वल्स टू, सॉरी, सी ए जे माई इक्वल्स टू सी ए जे माइनस 1, सी ए जे इक्वल्स टू सी ए जे माइनस 1। अब जो है यहाँ इसका वैल्यू हम लोग कितना कर दिए ना, सी ए जे दैट मीन्स सी ए जे मतलब यहाँ पे क्या होगा, सी ए जे, एनीवन कैन से। Yes, sir. Sir, question, sir. My question is now in that means C7, that means we are getting 14, so now B14 में कौन सा वैल्यू आएगा, AJ मीन्स 9। यस, AJ मीन्स 9, कहाँ से 9 मिला ना, ये 9 है, तो 9 इसका पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया।
ठीक है। उसके बाद लॉजिक में यहाँ पे है कि सी ए जे इक्वल्स टू सी ए जे माइनस वन, तब जाके कंप्लीट हो रहा है। तो सी ए जे दैट मीन्स C9, 15. यस, तो C9, तो ना 15 का पोजीशन अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। 14 सर। यस, क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा, नेक्स्ट जो होगा, अब हम लोग सी दैट मीन्स ए B13 पोजीशन में नेक्स्ट 9 आएगा। B13 पोजीशन में ये जो नेक्स्ट 9 है, हम लोग जब इस जगह पे पहुंचेंगे तो उसके लिए इसका एक वैल्यू इसका डिक्रीज कर दिया गया। और क्या है मेन कंसेप्ट, इसलिए हम बोल रहे थे कि विल स्टार्ट फ्रॉम JN-1, क्यों ना, लास्ट जो है, जो 9 कहाँ पे है, जो 9 अभी लास्ट एलिमेंट था यहाँ पे लास्ट में, तो 9 का और इस 9 का देखो पोजीशन, मतलब पहले जो था वही वाला सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, दैट मीन स्टेबल, इसको स्टेबल बोलते हैं। देखना हम लोग लास्ट पहले जो जितने सारा कंडीशन बताया था कि काउंटिंग सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्ट, क्यों ना, दैट्स व्हाई इज अ स्टेबल सॉर्ट, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये 9 का सीक्वेंस जो है वही सीक्वेंस में रहेगा, अगर सिमिलर एलिमेंट है फिर भी वो सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, पहले जो 9 था वो पहले पोजीशन में ही रहेगा, इसीलिए हम लोग स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे, और इसीलिए इसका वैल्यू अभी एक कम हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा ना, इसका वैल्यू 12 से लेके सॉरी नेक्स्ट हो जाएगा आपका 14 13 हो गया, अब क्या होगा 12, अब 12, यस, तो 12 मीन्स A12, A12 में कौन सा वैल्यू है, A12 में 6. 6, A12 में 6। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट सी ए जे मीन 6, तो C6, तो नाउ यू चेक C6 में कौन सा वैल्यू है, 9, यस, Yes. सर 9 सर। वेरी गुड, तो 9. 9 वैल्यू है, तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, क्यों ना, 8 यस 8, 8. तो नाउ इन दिस पोजीशन दैट मीन्स B8, तो B8 जो होगा यहाँ पे, तो B8 पोजीशन में कौन सा वैल्यू होगा, 13. B8 में कितना होगा AJ मीन्स A12 में जो वैल्यू है, क्योंकि हम लोग इसी वैल्यू को उठा के बी एरे में रख रहे हैं ना, आवर मेन ऑब्जेक्टिव दिस इज द एरे, जो एरे एलिमेंट है ए एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, बी एरे में, ठीक है, और उसका एक्चुअल पोजीशन जो है उस पोजीशन में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे अभी इसका वैल्यू क्या हुआ ना, आफ्टर दैट ए जे दैट मीन्स हो गया A12 में वैल्यू 6, नाउ C6 माइनस 1, तो C6 माइनस 1 मीन्स कितना होगा यहाँ पे, 5 दैट नो C6 मतलब सॉरी, एक्चुअल में C6 का वैल्यू कितना है, 9 है, 9 माइनस 1 दैट मीन्स 8, यहाँ पे 8 हो रहा था ना, तो इसीलिए 8 पोजीशन में कौन सा वैल्यू आएगा, 12. है B8 में, 8 आएगा सर। B8 में AJ का वैल्यू, AJ मीन A12 में कौन सा वैल्यू, 18. पहले अपना सिंपल लॉजिक को सोचिए, जो हम लोग का यहाँ पे जो एरे एलिमेंट है इसी को तो हम लोग सॉर्टेड फॉर्म में ला रहे हैं, तो अभी जो फाइनल स्टेज में आ रहे हैं बी एरे, तो बी एरे में जो एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है, और सॉर्टेड फॉर्म में है इसीलिए उसको, तो सॉर्टेड फॉर्म में मतलब यहाँ पे एक्चुअल उसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे रख रहे हैं, यस, एक्चुअल दैट मीन्स 8 पोजीशन, देखो 14 में 9 ये फिक्स हो गया, ठीक है, सिमिलरली जो 8 है B8 में 6, यहाँ पे समझ में है। अब नेक्स्ट क्या करें ना, सी ए जे माइनस 1,
तो सी ए जे मतलब क्या हो गया ना, सी ए जे मतलब C6, ए जे मतलब A12 में जो वैल्यू है, तो C6 माइनस 1, C6 में वैल्यू क्या था, C6 में 9 था सर। 9 था, 9 उसका सर। वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होके 8 हो जाएगा। 8। इसका लॉजिक आपको जैसे एक सिमिलर मिलेगा नंबर, तब पता चलेगा कि हम लोग क्यों उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब जाके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जैसे ही हम 11 लेंगे, 11 मतलब यहाँ पे j इक्वल्स टू 11, नाउ j वैल्यू इज 11। तो A11 में क्या है, A11 में है आपका 4, A11 में 4, तो 4 दैट मीन्स नाउ CA4, CA4, सॉरी AJ मीन्स 4, दैट मीन्स C4, तो C4 में क्या वैल्यू है, 4, C4 में 4 है सर। yes, so now 4 minus 1 that means 3, yes, कोई डाउट, C4 that means C4 में 4 है, तो 4 minus 1 that means here 3, तो 3 मीन्स यहाँ पे क्या होगा B3, तो B3 पोजीशन में कौन सा वैल्यू आएगा, B3 पोजीशन में AJ का वैल्यू आएगा, AJ मीन्स A11 में जो वैल्यू है, A11 में क्या वैल्यू है, A11 में कौन सा वैल्यू है ना 4 है, तो 3 4 पोजीशन सर। 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, एक जब सिमिलर मिल जाएगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, इसलिए मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 10। ओके, नाउ इस ये वाला देखने से हम लोग का फाइनल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नाउ यू चेक, सो नाउ A10, सो नाउ J वैल्यू इज 10, J वैल्यू इज 10, सॉरी, J वैल्यू इज 10, सो 10 मीन्स A10, A10 में कौन सा वैल्यू है, 7. 7 सर। 7, वेरी गुड, तो A10 में अभी 7 है। So now you check next. Now you check next one. So CAJ, that means C7. Yes, C7. तो C7 देखो हम लोग पहले क्या कर दिए हैं ना, C7 में कौन सा वैल्यू है, सर 10 सर। 10। हम लोग का पहले क्या था, 11 था, हम लोग उसी टाइम देखो ना कम कर दिया था, ठीक है ना। यस सर। तो अभी इसलिए हम इसको कम किए थे, मतलब ये लॉजिक में है। तो अभी इसका